students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is Introduction to Flash CS6. What is Flash? Flash is a multimedia software created by Adobe Systems Incorporated. Flash provides a versatile and easy way to create animation that consists of images, sound and video with various effects. It is widely used in games, cartoons, graphics or for creating special effects in online sites. Flash is one of the most popular technologies on the internet because it does not require programming skills. Flash originated with the application of a Smart Sketch developed by Jonathan Gay. Flash was originally owned by Micromedia. Presently, it is distributed by Adobe and is popularly known as Adobe Flash. Nowadays, various versions of Flash are available. In this chapter, we shall study the latest CS6 version of Adobe Flash. तो फ्लैश आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड ने ही क्रिएट किया है. फ्लैश जो होता है ये आपको वर्सेटाइल इजी वे प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एनिमेशन को क्रिएट कर सको, जिसमें आपकी इमेजेस भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, साउंड एंड आपके वीडियोस वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं और इसके थ्रू आप वेरियस इफेक्ट देके अपनी जो एनिमेशन है या अपनी जो क्रिएशन है उसे और इफेक्टिव बना सकते हैं. फ्लैश जो था ये ओरिजिनेट किया गया था विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट स्केच, जिसे डेवलप किया था जोनाथन गे में. अब तक इसके काफ़ी सारे वर्जन निकल आ चुके हैं जिसे हम अडोब फ्लैश भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट वर्जन इसके CS6 के बारे में. स्टार्टिंग फ्लैश CS6. फॉलो गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट फ्लैश CS6. Step 1, click on Start button. Step 2, choose all programs. Step 3, click on Adobe Flash CS6 Professional. The Flash screen appears. Select the Flash file ActionScript 3.0. Under Create New section, Flash opens a new blank file. इसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, देन आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है, देन आपको क्लिक करना है Adobe Flash CS6 प्रोफेशनल पे. तो आपके सामने जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी. देन आपको सिलेक्ट करना है फ्लैश फाइल को अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन. Components of Flash interface. The Adobe Flash Professional CS6 interface has the following components. Menu bar. The topmost bar of Flash is called menu bar. It holds different menus to perform different tasks. It has a drop-down box right to it which has a different view modes for Flash interface. Essential is the default mode of the Flash interface. Document tab, it displays the name of the document. By default, document name is Untitled 1. Stage, the rectangular white large area in the center of the screen is called stage. It is an area where you place your contents or create your drawings or movies. The default state size is 550 into 400 pixels. Work area, the light gray area surrounding the stage is called work area. You can place objects here until you want them to appear on the stage. Tools panel, it holds various tools that allow you to create and edit the object on the stage. The tools panel is divided into 4 sections. The tools section contains the tools that are used for drawing, painting and selecting the objects. The view section holds tool for zooming and painting the application window. The colors section includes a modifier to select colors for the shape drawn by you. The options section shows a modifier for the currently selected tools. तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले इसका होता है मेन्यू बार, जो कि आपके टॉप होता है आपके फ्लैश के मेन्यू बार के ऊपर. ये होल्ड करता है डिफरेंट मेन्यूज़ को ताकि आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकें. डॉक्यूमेंट टैब जो होती है ये डिस्प्ले करती है आपके डॉक्यूमेंट के नाम को, और बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप अपनी फाइल का नाम सेव नहीं कर लेते ये अनटाइटल 1 के नाम से वहाँ पे सेव्ड रहती है. स्टेज जो होता है ये आपका रेक्टेंगुलर लार्ज एरिया होता है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं, अपनी पिक्चर्स को आप मॉडिफाई करते हैं, वीडियोस वगैरह को आप वहाँ पे क्रिएट करते हैं.
वर्क एरिया होता है आपका लाइट ग्रे एरिया सराउंडिंग बाय द स्टेज, स्टेज के आसपास जो आपका ग्रे एरिया होता है ये आपका वर्क एरिया होता है। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या उनको दोबारा से वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। टूल्स पैनल होते हैं, ये आपके वेरियस टूल्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम अपने पिक्चर्स को या अपने वीडियोस वगैरह को आप एडिट करते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं टूल्स के। सबसे पहला होता है आपका टूल सेक्शन जिसमें आपके अलग अलग टूल्स ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। व्यू सेक्शन जो होता है ये आपके पिक्चर को जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है। कलर सेक्शन जो होता है, कभी कभी हम अपनी शेप्स पे या अपनी पिक्चर पे आप कलर्स वगैरह फिल करते हो तो यहाँ से आप कलर्स चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेक्शन जो होता है ये आपका मॉडिफायर को शो करता है करंटली सेलेक्टेड टूल्स के लिए। Property inspector, it shows the properties of the currently open document or any object or tool currently selected in the document. If it is not visible by default, press Ctrl plus F3 keys to open it. Timeline panel, it organizes and controls the content of a file over time in layers and frames while creating animation. The major components of a timeline are layers. Layers appear on the left side of the timeline. Layers are levels on which elements can be placed. The elements of the topmost layer will be in the foreground while the lower ones are in the background. Frames, each layer is made up of a number of frames. These frames appear to the right of a layer as a row of cells. The number of frames an element takes show the duration of that element and the speed of the animation. Keyframes are frames which are occupied. They are denoted by a black dot. Blank keyframes are spaces which occupy empty space. These contains no elements. Playhead, it indicates the current frame displayed on the stage. It moves left to right through the timeline. Tips: F5 create a frame, F6 creates a new keyframe, F7 creates a blank keyframe. Color palette, it is used to choose different colors. और कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो होता है ये आपको आपके करंटली ओपन डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। टाइमलाइन पैनल जो होता है ये ऑर्गेनाइज करता है एंड कंट्रोल करता है आपके कंटेंट ऑफ फाइल को ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। अब लेयर्स एंड फ्रेम्स क्या होते हैं? लेयर्स अपीयर करते हैं आपके लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन पे और लेयर्स आपके लेवल्स होते हैं जिन पे आपके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्लेस किया जाता है। फ्रेम्स जो होते हैं ये आपके लेयर्स, ईच लेयर जो होती है वो आपकी बनी हुई होती है नंबर ऑफ फ्रेम से, और ये जो फ्रेम्स होते हैं ये अपीयर करते हैं राइट ऑफ द लेयर एज अ रो ऑफ सेल। की फ्रेम्स आपके फ्रेम्स होते हैं जो कि आपके ऑक्यूपाइड होते हैं और ये डिनोट करते हैं बाय अ ब्लैक डॉट। प्लेहेड इंडिकेट करता है आपके करंट फ्रेम को जो कि आपके स्टेज पे डिस्प्ले होता है और ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट को थ्रू आउट द टाइमलाइन। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हमें दी गई है। अगर आपको फ्रेम को क्रिएट करना है तो आपके फंक्शनल की F5 को आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको न्यू की फ्रेम को क्रिएट करना है तो आप F6 को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक की फ्रेम को क्रिएट करना है तो उसके लिए आप F7 को प्रेस कर सकते हैं। कलर पैलेट आपके डिफरेंट कलर्स को चूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है और दी हुई होती है। Now working in Flash. Flash environment is very easy to understand and use. Let us learn to work with Flash environment. Creating a new Flash file. Step 1, click on the file menu to select new option. A new document dialog box appears. Step 2, click the Flash file action script 3.0. Step 3, click the OK button. न्यू फ्लैश फाइल को क्रिएट करना सीख लेते हैं। पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, देन आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लैश फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सेविंग अ फ्लैश फाइल, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव अ फ्लैश फाइल। Step 1, click the file menu. Step 2, select the save option. The save as dialog box appears. Step 3, specify the name of the file and click the save button. The flash file get saved. अगर आपको आपकी फ्लैश फाइल को सेव करना है तो उसके लिए आपको
फाइल मेन्यू पे जाना है, देन आपको सेव मेन्यू पे जाना है। सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जो आपसे आपके फाइल का नेम पूछेगा। जब आप फाइल नेम डाल देंगे तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। Do you know the flash files are saved with the extension .fla? जिस तरीके से बाकी आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, उसी तरह से जो आपकी फ्लैश फाइल होती है उसको सेव करने के लिए .fla एक्सटेंशन होता है। मतलब आपकी फाइल जो है वो आपके .fla एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगी। Using the Flash tool, let us learn some of the tools of Adobe Flash Professional CS6. Line tool. Line tool is used to draw straight lines on the stage. Follow the given steps to use the line tool. Step 1. Click the line tool on the tools panel. Step 2. Select a stroke color from stroke box, a thickness by moving the stroke slider, and a style from the style present in the property inspector panel. Step 3. On the stage, drag the mouse to draw the picture you want. तो यहाँ पे आपके टूल्स में से हम लाइन टूल को यूज़ करना सीख लेते हैं। ठीक है, लाइन टूल जो होता है ये आपके स्टेज पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप लाइन टूल को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टूल पैनल में से, देन आप सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक कलर को फ्रॉम द स्ट्रोक बॉक्स और उसकी थिकनेस को भी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑन द स्टेज आप ड्रैग करेंगे अपने माउस को। जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आपकी लाइन जो है पीछे से ड्रॉ होती चली जाएगी। इसके बाद आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं या कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिमेंबर फिल एंड स्ट्रोक. Stroke color and fill color are used to change outline and fill color. Stroke slider increase thickness of line. Style box provides स्टाइल फॉर लाइन। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है, ये हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम फ्लैश CS6 को यूज़ कर रहे होते हैं। कर्विंग अ लाइन. You can turn a straight line into a curve with the selection tool. Follow the given steps to draw a curve. Step 1. After drawing a line, click the selection tool. Make sure the line is not selected. Step 2. Move the pointer on the line. When the pointer changes to arrow with curve symbol, click and drag the line to draw curve. Release the mouse button when the curve is drawn. अब आप किसी भी लाइन को कर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले जब आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे देन आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आपकी जो लाइन है अभी वो सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। फिर आप अपने पॉइंटर को मूव करेंगे लाइन की तरफ। जब आपका पॉइंटर इस तरह के एरो में चेंज हो जाएगा फिर आप उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे। जहाँ तक आप उसका कर्व उसे बनाना चाहते हैं वहाँ तक आप उसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, सपोज आपको डीप कर्व चाहिए या आपको छोटा कर्व चाहिए तो आप अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट करेंगे। जब आपका कर्व बन जाएगा तब आप अपने माउस को रिलीज कर देंगे। नाउ पेंसिल टूल. The pencil tool allows us to draw freehand lines just as we draw using a real pencil. It has 3 possible modes: straighten, smooth and ink. Follow the given steps to use the pencil tool. Step 1. Click the pencil tool on the tools panel. Step 2. Select a stroke color for the pencil outline. Step 3. Select any option from the pencil mode on the tools panel. Step 4. Drag the mouse to draw in the stage area. पेंसिल टूल जो होता है ये हमें फ्री हैंड ड्रॉइंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसमें आपके 3 मोड होते हैं, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। तो हम पेंसिल टूल को कैसे यूज़ करना है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे ऑन द टूल्स पैनल, देन आप उसका स्ट्रोक कलर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऑप्शन फ्रॉम द पेंसिल मोड एंड देन आप ड्रैग करके अपने माउस को स्टेज एरिया पे लेके जाएंगे। तो आप जैसे आप अपनी कॉपी में कुछ भी ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, उसी तरीके से आप अपने स्टेज पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल. This tool is used to create square and rectangular shapes. This tool has an option which can be set to draw a rounded rectangle. Follow the given steps to use the rectangle tool. Step 1. Click on the rectangle tool to select it. Step 2. Change the stroke color, stroke style and fill color from the fill and stroke section in the property inspector. Step 3.
hold and drag the mouse pointer on the stage. As the rectangular shape is created, release the left mouse button. रेक्टेंगल टूल को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप जो है क्रिएट करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे इसे सेलेक्ट करने के लिए। देन आप स्ट्रोक कलर को चेंज करेंगे, स्ट्रोक स्टाइल एंड फिल कलर फ्रॉम द फिल एंड स्ट्रोक कलर को आप वहाँ से चूज़ करेंगे। देन आप होल्ड करके लेके आएंगे अपने माउस पॉइंटर को ऑन द स्टेज। फिर आप जैसे जैसे उसको होल्ड करके ड्रैग करके लेके जाएंगे तो आपका जो रेक्टेंगुलर शेप है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देंगे। रिमेंबर, क्लिक ऑन द स्मॉल ट्रायंगल एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द टूल आइकन टू व्यू द हिडन टूल्स. You can also draw other shapes like oval, polystar, etc. on the stage. Click the small arrow on the rectangle tool and choose the tool you want. आप स्मॉल ट्रायंगल पे क्लिक करके एट द राइट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द टूल आइकन आप व्यू हिडन मतलब जो हिडन टूल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ओवल पॉलीस्टार भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है स्मॉल एरो ऑन द रेक्टेंगल टूल और यहाँ से आप डिफरेंट टूल्स को चूज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रश टूल. The brush tool allows us to draw freehand lines like a real painting brush. Follow the given steps to use the brush tool. Step 1. Select the brush tool from the Tools panel. Step 2. Select fill color in the Property Inspector. Step 3. Click on the brush mode modifier and select a painting mode. Step 4. Select brush size and brush shape from the options area. Step 5. Drag the brush on the stage to draw the required figure. तो आप अपने जो CS6 वाला जो स्टेज है वहाँ पे आप ब्रश टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रश टूल आपके रियल ब्रश जैसा ही दिखता है और इसके स्ट्रोक्स भी रियल ब्रश जैसे ही होते हैं। इसके लिए आप अपने ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं टूल्स पैनल में से। देन आप फिल कलर को सेलेक्ट करेंगे इन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। देन आप क्लिक करेंगे ऑन ब्रश मोड मॉडिफायर को। इसमें आप पेंटिंग मोड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको अलग अलग मोड्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो यू विल सेलेक्ट पेंटिंग मोड। देन ब्रश साइज भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ब्रश का साइज जो है वो आपको कितना थिन रखना है, कितना उसको थिक रखना है, तो ये भी आप सेलेक्ट करेंगे। एंड आपको ब्रश शेप भी सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस एरिया। देन आप अपने ब्रश को ड्रैग करके लेके आएंगे अपने स्टेज पे और फिर आप अपनी ड्राइंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। Remember, use shift key while dragging to keep brush strokes to horizontal and vertical direction. आप shift key को use करेंगे जब भी आप अपने brush को अलग अलग strokes में लेकर के जाते हैं, चाहे वो horizontal हो चाहे वो vertical हो। Paint bucket tool. Paint bucket tool is used to fill an object with color. Follow the given steps to use paint bucket tool. Step 1. Draw the shape and click the paint bucket tool. Step 2. Choose a color from the fill color under the fill and stroke section in the property inspector. Step 3. Click on the shape you want to fill with color. The shape get filled with the selected color. This tool paint enclosed area with 3 types of fills: solid colors, gradient fills, a blend of 2 or more colors, and bitmap fills, पिक्चर और इमेजेस। तो अब हम जान लेते हैं कैसे हम पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल करते हैं। आपने पेंट में भी पढ़ा होगा कि पेंट में जो पेंट बकेट टूल होता है वो कलर फिल करने के काम आता है। नाउ स्टेप 1, ड्रॉ द शेप एंड क्लिक द पेंट बकेट टूल। स्टेप 2, आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। ठीक है, इसमें आप फिल एंड स्ट्रोक सेक्शन में जाके कलर अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। देन आप उस शेप पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप कलर फिल करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो पेंट टूल है वो उस इनक्लोज एरिया में 3 टाइप्स में कलर फिल करेगा, जैसे कि सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर एंड आपका बिटमैप फिल। नाउ इरेजर टूल. The eraser tool is used for erasing anything that is drawn on the stage. Follow the given steps to use eraser tool. Step 1. Select the eraser tool from the tools panel.
Step 2, click on the eraser mode modifier and select the required eraser. Step 3, click on the eraser shape modifier and select the eraser shape and size. Step 4, click and drag it on the object to erase. अब जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए या कोई आपको पिक्चर का कोई भी पार्ट आपको इरेज करना है तो आप इरेजर टूल को यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको इरेजर टूल पे जाना है, टूल्स पैनल पे, देन आपका जो इरेजर मोड मॉडिफायर है उस पर आप क्लिक करेंगे एंड आप सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड इरेजर को. उसके बाद आप क्लिक करेंगे इरेजर से मॉडिफायर पे और आप अपने इरेजर का साइज़ वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. कभी कभी क्या होता है, हमें बड़ी पिक्चर्स को इरेज करना होता है तो हम उसके लिए बड़ा इरेजर लेते हैं. कभी कभी हमें बहुत छोटी माइन्यूट सी कोई भी मिस्टेक को हटाना होता है, डिलीट करना होता है, तो उसके लिए हम छोटा सा इरेजर यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप इरेजर के साइज़ को जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप ड्रैग करके लेके आओगे उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पार्ट को आपको इरेज करना है. नाउ टेक्स्ट टूल. Text tool is used to type text on the stage. Follow the given steps to use text tool. Step 1, select the text tool from tools panel. Step 2, change the font size and font color from the characters section in the property inspector. Step 3, click on any area of the stage to get the cursor and type the text. टेक्स्ट टूल क्या होता है, टेक्स्ट टूल से आप अपने स्टेज पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए आपको टेक्स्ट टूल पे जाना है टूल्स पैनल में से, देन आपको फॉन्ट का आपको स्टाइल, उसका साइज़, उसका कलर आपको क्रिएट करना है या आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं कैरेक्टर सेक्शन में से. देन आपको स्टेज पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे अपने टाइपिंग के लिए एक कर्सर मिल जाएगा जिससे आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. Editing objects using flash tools. The tools that we have discussed are generally used for creating objects. Now let us learn about more tools which help to modify them. Selection tool. The selection tool helps to select one or more objects on the stage. There are three types of selection tool in Flash. Selection tool back arrow. Selects rectangle shaped area. Click an object to select it. Drag a selected object to move it. Sub-selection tool selects and moves points of an object or edit paths between adjacent points. Lasso tool selects irregular shaped areas of drawing. अब आप ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना सीखेंगे फ्लैश टूल में. यहाँ पे आप सबसे पहले सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सिलेक्शन टूल जो होता है ये आपका हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने में. इसमें आप एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेज पे. ये काम जो होता है ये 3 टाइप से होता है. सबसे पहला आपका सिलेक्शन टूल बैक एरो जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है रेक्टेंगुलर शेप एरिया में. उसके बाद आता है आपका सब सिलेक्शन टूल, ये सेलेक्ट करता है एंड मूव करता है आपके ऑब्जेक्ट के पॉइंट को और फिर उसके पाथ को एडिट करता है. लेसो टूल जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट को इर्रेगुलर शेप में उसको सेलेक्ट करता है. फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. The free transform tool helps to transform shapes in various ways, i.e. you can move it, rotate it or resize it. It has 4 modes: rotate and skew, scale, distort, envelope. फ्रीज ट्रांसफॉर्म टूल जो होता है ये आपके हेल्प करता है आपको शेप्स को ट्रांसफॉर्म करने में इन वेरियस वेज. इसमें आप उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं. तो ये आप 4 मोड्स के तरीके से कर सकते हैं. Follow the given steps to use free transform tool. Step 1, select the object and click the free transform tool. Step 2, choose the required option from the tools panel. Step 3, click and drag the object to transform. Tip: N line tool or rectangle tool, V selection tool, K paint bucket tool. तो ट्रांसफॉर्म टूल को आप कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, उन स्टेप्स से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाना है. ठीक है, उसके बाद आप चूज़ करेंगे रिक्वायर्ड ऑप्शन को जो आपको पैनल दिया गया है उसमें से. देन आप ड्रैग करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी बताए गए हैं. ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एंड शेप्स. Grouping means to combine the basic shapes objects together as one.
Follow the given steps to group objects. Step 1, draw the shapes and select all of them using selection tool. Step 2, click the modify menu. Step 3, from the menu click group option. Tips: Ctrl plus G keys combination is to use to group the selected object. To ungroup the objects, select an object that is grouped together and click the modify menu and then click the ungroup option. आप अपने फ्लैश जो आपका एडोब फ्लैश है इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स को शेप्स को आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं. ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आपके जो बेसिक जो आपके शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको एक साथ उनको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो. तो सबसे पहले आपको शेप्स को ड्रॉ करना है, देन आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, जितने भी टूल्स को, जितने भी शेप्स को आप क्या करना चाहते हो, एक साथ दिखाना चाहते हो, देन आप मॉडिफाई मेन्यू में क्लिक करेंगे. फ्रॉम मेन्यू आप क्लिक करेंगे ग्रुप ऑप्शन पे. इसके लिए आप कंट्रोल प्लस जी भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे, ये शॉर्टकट की है. अब आपको उन शेप्स को अनग्रुप करना है, उनको अलग करना है. तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जाएंगे मॉडिफाई मेन्यू पे एंड देन आप करेंगे अनग्रुप ऑप्शन को. तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. Let us rewind. Flash is a multimedia graphic program used for creating animations. The Flash interface contains the stage, timeline, tool panels, properties panels and color palette. The Flash Tools panel contains a number of tools that help you to create and edit objects. Flash document files have an extension of .fla. Grouping means to combine the basic shapes together as one. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.